Welcome in English Joy. Hi, hello students. Unit 3, an interview with Arun Krishnamurthy. Read the extract and answer the questions. Which organization did Arun found at the age of 17? Arun founded the NGO Environmentalist Foundation of India at the age of 17. 17 साल की एज में उन्होंने फाउंड किया था ये वाला NGO. Which was the first activity of EFI? EFI की पहली एक्टिविटी. The first activity of EFI was turtle work, a move to save turtle eggs and young hatchlings in Chennai. What are the activities of Arun's team? Arun's team cleans lakes, beaches and zoos. Second, Arun's team plants trees. Third, educate people through street plays. And fourth, also makes environment friendly paper bags. Why was Arun hurt? Arun was hurt because a lake next to his house was so polluted that it spread mosquitoes and turned the place into an ugly neighborhood. What did Arun do? Arun collected a couple of his friends and cleaned the pond next to his house. What does Arun say about his parents? Arun says that his parents are supportive and understood his interest in environment, and so they never stopped him from doing what he wanted. How did Arun make sure that he never failed his parents? Arun always informed his parents about his activities and took their advice before jumping into action. कुछ भी करने से पहले अपने पेरेंट्स की वो सलाह लेता था. What did Arun teachers teach him? अरुण के टीचर्स ने उन्हें क्या सिखाया? Arun's teachers taught him to be humble. Humble यानी नम्र बनना सिखाया. Simple and keep learning all the time. Simple बनो और हमेशा सीखते रहो. What does Arun call himself? Arun calls himself an environmentalist. Why does Arun believe that he is an environmentalist and not an activist? Arun believes that he is an environmentalist and not an activist because he keeps learning so much from the environment and his work to protect the environment. What did Arun realize from the green cover in his school and college? उसकी स्कूल कॉलेज से जो ग्रीन कवर है यानी ग्रीनरी से अरुण ने क्या सीखा? The green cover in Arun's school and college made Arun realize, made Arun understand. इन सब चीज़ों ने स्कूल और कॉलेज में जो ग्रीनरी थी उन चीज़ों ने अरुण को क्या समझाया? द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर लाइफ फॉर्म. क्या सिखाया है? द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर लाइफ फॉर्म्स. हाउ ब्यूटिफुल दे आर, वो कितने सुंदर है. एंड वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, और हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्यों है. Next, why does Arun say that we have a lot of to learn from animals? Animals से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत क्यों है? आंसर लिखेंगे. Arun says that we have a lot of to learn from animals because they are on their own. वो अपना काम खुद अपने में ही मस्त रहते, अपना काम करते रहते. Find their own food and are always active, on the move and never lazy. कभी लेज़ी नहीं होते, अपना काम करते रहते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं.
वाई डज अरुण से दैट ओनली हिज ड्यूटीज इज गूगल हैव कम टू एन एंड? सिर्फ वो ऐसा क्यों कहते हैं अरुण कि उनकी जो गूगल के अंदर जो उनकी ड्यूटीज़ है वही सिर्फ ख़त्म हुई है? और ऐसा क्यों कहते हैं? तो अरुण क्विट्स हिज जॉब एट गूगल बट ही इज स्टिल इन टच विथ हिज फ्रेंड्स एंड देयर, सो ही says that only his duties at Google have come to an end. Not emotional bond. Emotional bond ख़त्म नहीं हुए, बाकी गूगल की जॉब ही उन्होंने छोड़ी है, उनके फ्रेंड्स से वो कांटेक्ट में बने रहते हैं. Why did Arun quit his job? Arun did not want to sit back and enjoy life when environmental damage was happening on the large scale. So he quit his job to work to save environment. Environment को बचाने के लिए उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया. नेक्स्ट, what is thrown in lakes? लेक्स में क्या फेंका जाता है? क्या फेंकते हैं सब लोग? एवरीथिंग फ्रॉम ए डायपर टू वर्न आउट स्लीपर आर थ्रोन इन लेक. लेक के अंदर एवरीथिंग, सब कुछ, डायपर से लेके वर्न आउट स्लीपर, टूटी चप्पल तक सब कुछ फेंक दिया जाता है उसके अंदर, कचरा कूड़ा. वाई शुड वी केयर फॉर वाटर बॉडीज? वाटर बॉडीज की हमें केयर क्यों करनी चाहिए? वी शुड केयर फॉर वाटर बॉडीज बिकॉज वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ. क्योंकि वाटर है वो जीवन का आधार है. वाई डू अरुण एंड हिज टीम इंश्योर? वाई, वो क्या इन्होंने इंश्योर किया और क्यों? अरुण एंड हिज टीम इंश्योर दैट द लेक एरिया एंड वाटर होल्डिंग्स आर फ्री ऑफ गार्बेज. ये दोनों चीज़ें फ्री ऑफ गार्बेज होनी चाहिए बिकॉज जिससे कि जिससे कि बर्ड्स स्नेक्स कैन लिव इन पीस. क्योंकि ये गार्बेज से फ्री होंगे जिससे कि बर्ड्स और स्नेक हैं वो उसके अंदर आराम से शांति से रह सकें. विच टूल्स डू दे यूज़? कौन से टूल्स वे लोग यूज़ करते हैं सफाई करने में? दे यूज़ टूल्स लाइक रैक्स एंड स्पैड्स. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्लीन अ लेक? लेक को क्लीन करने में कितना समय लगता है? डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लेक, लेक की साइज पे डिपेंड करता है, एंड द अमाउंट ऑफ गार्बेज की अमाउंट पे, कितना गार्बेज है. इट टेक्स बिटवीन 5 days and 3 months टू क्लीन अ लेक. What does Arun and his team use while cleaning a lake? लेक क्लीन करते समय क्या यूज़ करते हैं? Arun and his team wear nose mask, sanitary gloves and carry rakes and spade while cleaning a lake. For what are earth mover and pokelane used? Earth movers and pokelane are used to desilt the lake and clean the weeds and harmful shrubs. अर्थ मूवर और पोकलेन का यूज़ लेक को डिसिल्ट करने में, और वीड्स जो खरपतवार होती है, वीड्स का अर्थ क्या हुआ? खरपतवार और जो नुकसानदायक हार्मफुल जो श्रब्स फालतू इसे उग जाते हैं उनको हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. वट एडवाइस डज अरुण गिव अस? अरुण क्या हमें एडवाइस देते हैं? अरुण एडवाइजेस अस टू स्टॉप थ्रोइंग थ्रेस आउटसाइड अवर होम्स एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ थ्रेस दैट वी जनरेट. कचरा कम करने को कहते हैं. जो हम जनरेट कचरा करते हैं उसकी अमाउंट को क्या रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस यानी कम करने के लिए कहते हैं. और जो थ्रेस है, थ्रेस का मतलब भी कचरा होता है. गार्बेज और थ्रेस दोनों का मतलब होता है कचरा. तो ये थ्रेस है वो हमें घर से बाहर फेंकना बंद करना चाहिए, डस्टबिन में ही देना चाहिए, राइट. देन व्हाट इज़ फाउंड इन लेक्स? लेक्स में क्या मिलता है? तो स्ट्रोज, टिश्यू पेपर्स. ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो व्हाट है ना, व्हाट की जगह आपको स्ट्रोज, टिश्यूज, रेपर्स, बैटरीज ये चीज़ें लिख देनी, बाकी वही की वही. जंक फूड, फास्ट फूड आर फाउंड इन लेक्स.
हाउ मच टाइम शुड स्टूडेंट्स डिवोट फॉर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए कितना समय डिवोट करना चाहिए स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स शुड डिवोट 4 hours ए वीकेंड, 2 hours ऑन संडे सैटरडेज एंड 2 hours ऑन संडेज. whom does the EFI ट्रेंड, EFI किसको ट्रेंड करती है? तो द EFI ट्रेंड एनिमल लवर्स, यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स, थिएटर आर्टिस्ट एंड साइंटिफिक रिसर्चर्स. इन लोगों को EFI ट्रेंड करती है, ट्रेनिंग देती है. हाउ ओल्ड इज द यंगेस्ट वॉलंटियर, जो सबसे छोटा वॉलंटियर कितने साल का है? द यंगेस्ट वॉलंटियर इज इन क्लास 3. अब आपको लिखना है राइट whether the sentences are true or false. First, Arun Krishnamurthy started EFI when he was 17 years old. Yes, true. Arun and his friend first cleaned the sea near his house. False है. सी को उन्होंने नहीं क्लीन किया था. क्या क्या क्लीन किया था उन्होंने? लेक को किया था उनके घर के पास है. सो ये क्या है? इसका यह क्या है? फॉल्स है. Arun's teacher taught his humility. Right? True. Arun Krishnamurthy calls himself an activist. अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं. False. Arun Krishnamurthy quit his job at Google. True. जब भी ट्रू फॉल्स लिखें तो हमेशा इस फॉर्मेट में ही लिखना है, यानी या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. कई बच्चे ऐसे क्रॉस और चौपड़ी करते, ये नहीं करना है. आगे देख लेते हैं. इंश्योर यानी सुनिश्चित करना, इम्पोर्टेंस महत्व, डैमेज यानी नुकसान पहुंचाना, एनवायरनमेंट पर्यावरण आपको पता ही है. पीपल हैव नाउ रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज. लोगों को अब ट्रीज का इम्पोर्टेंस पता चला है. टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, को प्रोटेक्ट करने के लिए वी मस्ट एंश्योर, हमें सुनिश्चित करना है दैट वी डू नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट, हमें सुनिश्चित करना है हम एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करते हैं. पॉल्यूटेड प्रदूषित या प्रदूषित करना, किया ऐसा होता है. एजुकेट यानी शिक्षा देना, एजुकेट करना. और गार्बेज कचरा स्प्रेड्स फैलता है, फैला हुआ होता है. पॉल्यूटेड वाटर स्प्रेड्स मलेरिया. पॉल्यूटेड वाटर यानी प्रदूषित पानी, क्या पानी है वो क्या फैलाता है? मलेरिया फैलाता है. देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एजुकेट पीपल, इसलिए लोगों को एजुकेट करना जरूरी है अबाउट कीपिंग अवर एनवायरनमेंट और कीपिंग अवर वाटर बॉडीज क्लीन. We should not throw any garbage in lakes and rivers. Dispose, attention, dump. Dump यानी डालना और dispose यानी निकाल करना. Garbage कचरा और attention यानी ध्यान. Mr. Das drew the attention of his neighbor to garbage. मिस्टर दास ने गार्बेज के बारे में अपने पड़ोसी का ध्यान खींचा. दैट हैड कलेक्टेड आउटसाइड द गेट, जो आउटसाइड घर के बाहर जो कचरा, ये दैट का अर्थ होता है जो, ये दैट का मतलब हुआ जो कचरा घर के बाहर साइड पड़ा हुआ था उस पर ध्यान खींचा. ही आस्क्ड हिम टू डिस्पोज ऑफ द गार्बेज, गार्बेज का डिस्पोज करने के लिए उन्होंने कहा. बट लेकिन पड़ोसी ने उनसे उल्टा क्या किया? द नेबर कंटिन्यू टू डंप मोर गार्बेज. लेकिन नेबर तो वहाँ पे और ज़्यादा गार्बेज डालना उन्होंने जारी रखा. पॉजिटिव, रिमूवल, हेजिटेट, डिस्टर्बिंग. पॉजिटिव हकारात्मक, सकारात्मक. रिमूवल का मतलब निकाल, और हेजिटेट हिचकाना, और डिस्टर्बिंग यानी जो आपको डिस्टर्ब करे वो चीज़. करप्शन इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर जो करप्शन है इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है एजुकेशन के अंदर करप्शन. बराबर. फिर यहाँ पे दिया इट्स रिमूवल, उसका रिमूवल ऑफ द, रिमूवल यहाँ पर क्या दिया है? द, जो कम दिखाई दे रहा है. द रिमूवल ऑफ ए करप्ट ऑफिसर, जो करप्ट ऑफिसर का जो रिमूवल है उसका निकाल करना, उसका हटाना. इन द डिपार्टमेंट के अंदर इज पॉजिटिव चेंज. ये क्या है? पॉजिटिव चेंज क्या है? कि करप्ट ऑफिसर को डिपार्टमेंट में से निकाल देना एक पॉजिटिव चेंज है. वी शुड नॉट हेजिटेट, हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए. किस लिए? टू रिपोर्ट द एक्ट ऑफ करप्शन, करप्शन के एक्ट का रिपोर्ट करने के लिए हमें हेजिटेट करना नहीं चाहिए. नेक्स्ट एक्टिविटीज जानते हैं. इन्फॉर्म, एक्टिविटीज जानते हैं क्रियाकलाप, और इन्फॉर्म सूचित करना. जनरेटेड यानी जो हमने जनरेट किया, उत्पन्न किया हो. एडवाइस यानी सलाह दी. यहाँ पे देखेंगे द टीचर एडवाइज्ड अस, टीचर ने हमें एडवाइस किया टू इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करने के लिए, टू इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट वेरियस एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में. दैट वी हैव प्लान फॉर समर कैंप, जो हमने
जो हमने समर कैंप के लिए प्लान की हैं. द कैंप हैज जनरेटेड ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट. और कैंप है वो बहुत सारा इंटरेस्ट पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट जनरेट करेगा, मतलब जनरेट कर रहा है बहुत सारा इंटरेस्ट उसके लिए. राइट शॉर्ट नोट्स यूजिंग द गिवन क्वेश्चंस और पॉइंट. ये पॉइंट्स दिए या क्वेश्चन दिए उसके आधार पे आपको शॉर्ट नोट बनानी. अरुण कृष्णमूर्ति के लिए है. हु इज़ कृष्णमूर्ति कौन है, उनके बारे में लिखना, उनका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एनजीओ का नाम लिखना, हाउ वाज ही, वो कैसे हैं, एंड व्हेन ही फाउंडेड एनजीओ, कब उन्होंने एनजीओ का. ये क्वेश्चन के आंसर जब हम लिखते जाएंगे अपने आप अपना पैराग्राफ बनता जाएगा. अरुण कृष्णमूर्ति इज़ अ यंग एनवायरमेंटलिस्ट हैं. एट द एज ऑफ 17 साल की उम्र में ही फाउंडेड एन एनजीओ called Environmentalist Foundation of India. Arun and his team of volunteers clean beaches and other water bodies, plant trees, and also make environment-friendly paper bags. Arun first cleaned a lake next to his house, which was heavily polluted, leading to the spread of mosquitoes and making the place ugly. He got a lot of support from his parents and teachers. Arun feels that it is important to protect birds and animals. He feels that water bodies should be clean so that birds and animals can live peacefully. He left a Google job for EFI to give full attention. Arun's NGO EFI. At the age of 17, Arun founded NGO called EFI to work for environment. Arun and his team clean beaches, water bodies. They plant trees and make paper bags. They clean water bodies. They use the garbage for landfill. The NGO encourages students to participate in environmental work. It also gives fellowship to interested students. It encourages the youth and trains them to make them actively involved in its activity. Role of Arun's parents and teachers in his activity. Arun's parents were very supportive. They understood that his interest was environment, so they never stopped him from doing what he wanted. Arun also made sure that he did not fail his parents. He always informed them about everything that he did. He always took their advice before jumping into action. His teachers taught him humility so that he did not become snobbish or arrogant and start thinking that he was a superstar because he was working for the environment. They taught him to be simple and keep learning all the time. Next, how Arun's school and college furthered his interest in environment. अरुण की स्कूल और कॉलेज का उनके एनवायरनमेंट के लिए जो उनका इंटरेस्ट था उसमें उनका क्या योगदान रहा. तो अरुण्स स्कूल एंड कॉलेज हैड प्लेंटी ऑफ ग्रीन कवर. कॉलेज और स्कूल में बहुत ग्रीन कवर था. बहुत प्लेसेस वर होम फॉर सेवरल अदर लाइफ फॉर्म्स. दैट्स वाई अरुण कुड अंडरस्टैंड देयर इम्पोर्टेंस. ही रियलाइज हाउ ब्यूटिफुल दे आर एंड why we need to protect them. He also realized that these animals are on their own, find their own food, and always active, on their move, never lazy. He found all these positive. According to Arun, we have a lot of to learn from animals. रीराइट द पैराग्राफ करेक्टिंग द अंडरलाइन वर्ड्स. अंडरलाइन वर्ड को करेक्ट करके फिर से लिखना है. मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पे दिए. प्लांटेड ऑफ ट्रीज नहीं आएगा, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज. ट्रीज का प्लांटेशन क्या है? इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग पॉल्यूशन. पॉल्यूशन रिड्यूस करने की मेथड्स में से एक है.
अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, एक अभ्यास के अनुसार, ट्रीज स्ट्रांगली रिड्यूस नहीं है, रिड्यूस आएगा। हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखते हैं ट्रीज है तो इसके साथ रिड्यूस आएगा, रिड्यूसिस नहीं आएगा। यहाँ पे ये कर्ता बहुवचन में है ना, तो यहाँ पे क्रिया को एक वचन लेना है, राइट। देन trees strongly reduces the sound level, particularly the continuous sound of vehicle. अब यहाँ पे हमें जो अंडरलाइन एक सेंटेंस दिया है, सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन वाला पार्ट है वो क्वेश्चन का आंसर हो, ऐसा क्वेश्चन हमें ढूंढना है। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमें दिए, 4 ऑप्शंस में से ढूंढना है। अंडरलाइन वाला पार्ट है उसका क्वेश्चन का आंसर आए, वो वाला क्वेश्चन हमें ढूंढना है। फर्स्ट है रीता हैज़ 10 रोजेस, इसमें अंडरलाइन किसको किया, 10 को। तो रीता के पास 10 गुलाब है, तो कितने कितने गुलाब है, 10। आंसर क्या है, कितने गुलाब है, 10। तो इसमें हाउ मेनी रोजेस आएगा, हाउ मेनी रोजेस यानी कितने रोज है, 10। तो आंसर आएगा बी, हाउ मेनी रोजेस हैज़ रीता। नेक्स्ट, नितिन गोज टू द लाइब्रेरी एवरी संडे, हर संडे को नितिन लाइब्रेरी जाता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे हाउ, जब भी इसमें दिया है एवरी दिया हो, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी दिया है, ऑफन दिया है, कितनी बार। इसका पूछने का मतलब क्या है कि नितिन कितनी बार, मतलब हर संडे को जाता है लाइब्रेरी, हर संडे को जाता है। यहाँ पर हर संडे को दिया है तो कितनी बार जाता है, ठीक है। तो हाउ ऑफन, एवरी, कितनी जाता है, तो यहाँ पे आएगा हाउ ऑफन। हाउ ऑफन डज नितिन गो टू द लाइब्रेरी। समटाइम्स मदर मेक्स अ पिज़्ज़ा फॉर अस, कई बार, कभी कभी, कई बार नहीं, कभी कभी मदर हमारे लिए पिज़्ज़ा बनाती है। तो अंडरलाइन दिया कभी कभी, तो मम्मी कितनी बार बनाती पिज़्ज़ा, तो कभी कभी। कितनी बार यानी फ्रीक्वेंसी पूछा है, जब भी इसके अंदर आए, समटाइम्स दिया है, इस तरह से दिया है, तो हाउ ऑफन, फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, राइट। ये ध्यान रखना है। जैसे इसमें कीवर्ड है, समटाइम्स है, ऑफन, ऑलवेज, नेवर। हाउ ऑफन डज मदर मेक पिज़्ज़ा फॉर अस। देन केतन नेवर मीट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स को कभी नहीं मिलता है। तो क्या आएगा कि कब मिलता है, मतलब कितनी बार मिलता है, तो कभी नहीं मिलता है। क्या क्वेश्चन आएगा, तो हाउ ऑफन, इसमें भी नेवर आया हुआ है, राइट। नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स ये दिया है, तो हमें हाउ ऑफन वाला से क्वेश्चन बनेगा। बारंबारता, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, राइट। तो इस तरह से नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द फंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट में जो फंक्शन दिया है उसका यूज़ करके हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। किरण ऑलवेज, जब यहाँ पे इस तरह से दिया है किरण ऑलवेज, अब यहाँ पे किरण ऑलवेज दिया है और यहाँ पे क्या, डिस्क्राइबिंग एक्शन, जब एक्शन करना है। यहाँ किरण एक वचन में है, तो क्रिया के अंदर कोई भी एक क्रिया लगा दो, उसमें एस अथवा एस लग दो। जैसे हम यहाँ पे प्लेज है, प्ले लिखा है तो प्ले में एस लगा दिया, यहाँ पे रीड है तो रीड में एस लगा दिया। दो में से कोई भी एक क्रिया ले लो और उसकी क्रिया लेके हमें एक्शन बना देना है कि वो एक्शन हमने बता दिया। ये ऑलवेज दे रखा है इसलिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो, राइट। या चालू वर्तमान काल प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी बना सकते हो और सिंपल फ्यूचर टेंस का बना सकते हो, राइट। तो ये आ गया। किरण ऑलवेज प्लेज चेस, किरण हमेशा चेस खेलता है। किरण ऑलवेज रीड्स स्टोरी बुक, किरण हमेशा स्टोरी बुक पढ़ता है। देन यहाँ पे दिया हो समटाइम्स मनोज, कभी कभी मनोज, ये इसमें भी एक्शन दिया। एक्शन में जब आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बना देना है। तो यहाँ पे समटाइम्स दे रखा है, यहाँ पे ऑलवेज दे रखा है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का बना देना है। यहाँ पे क्या है, मनोज से एक वचन है, यहाँ पे कोई भी एक क्रिया लिखनी है, उसमें एस अथवा एस लगा देना है। और यहाँ पे राइट लिखा है, तो राइट क्या लिखता है, क्या लिखेगा, तो पोएम लिखा, राइट्स अ पोएम, ठीक है। और यहाँ पे हेल्प लिखा, तो हेल्प में एस मनोज है, ये एक वचन है, तो यहाँ पे कोई भी एक क्रिया लगा दो, उसमें हेल्प है तो हेल्प्स कर देंगे, हेल्प्स इज ब्रदर। समटाइम्स मनोज
हेल्प्स हिज ब्रदर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया यू वन द मैच, तुम मैच जीत गए। जब और यहाँ पे क्या दिया प्लीजेंट्री, प्लीजेंट्री यानी शुभेच्छा देना है। तो जब भी ऐसे शुभेच्छा देने की आए, गुड विश आए करने के लिए, तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन, कोई मैच जीत गए तो कॉन्ग्रेचुलेसन आएगा, राइट। यहाँ पे डायलॉग कंप्लीट करना है। सचिन सेज हाय मानसी हाउ आर यू, कैसी हो मानसी। तो मानसी क्या बोलेगी, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है प्लीजेंट्री दिया है, प्लीजेंट्री के अंदर हमें गुड विश आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम सॉरी नहीं आएगा, ठीक है। कोई पूछा हाउ आर यू तो आई एम सॉरी नहीं, ये आई एम सॉरी प्लीजेंट्री है, लेकिन और ये थैंक यू, ये दो ही प्लीजेंट्री है, ये दो तो क्वेश्चन वाले, ये दो तो प्लीजेंट्री हैं, तो इसको लेना ही नहीं। इनमें से हमें क्या पसंद करना है, तो प्लीजेंट्री। इसमें तो जब पूछा आई एम फाइन तो यहाँ पे क्या आएगा आई एम फाइन, तो हाउ आर यू तो आई एम फाइन, थैंक यू, ये आएगा इसका आंसर बी, राइट। नेक्स्ट में यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे एक्शन पूछा है, राइट। राहुल सेज व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो राहुल, यहाँ पे हम ऑप्शन देख रहे थे, राहुल सेज व्हाट आर यू डूइंग हियर, यहाँ क्या कर रहे हो। तब राहुल जवाब दे रहा है हाउ आर यू। एक तो एक्शन में पूछा हाउ आर यू, ये एक्शन नहीं हुआ। ये कॉन्ग्रेचुलेसन, ये भी एक्शन है, ये दोनों तो प्लीजेंट्री, तो ये दो तो आएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या क्या बताना है, डिस्क्राइबिंग एक्शन बताना है, एक्शन तो है ही नहीं। अब ये वाला है, लास्ट वाला है, दिस गार्डन इज़ नियर माई, ये गार्डन मेरे घर के पास है, तो ये कोई एक्शन नहीं हुआ इसके अंदर, ये तो प्लेस बताया है, लोकेशन बताया, तो ये नहीं। इसमें दिया है आई यूजुअली कम हियर, देखो यूजुअली है, नेवर, ऑलवेज, ये सब एक्शन के अंदर आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, ठीक है। तो सी इज द आंसर, ओके। मैच द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फंक्शन, करेक्ट फंक्शन हमें मैच करना है। फर्स्ट भी है वी ऑफन प्ले चेस, हम कई बार, ऑफन का मतलब होता है कई बार, हम कई बार चेस खेलते हैं। फादर वेंट टू ऑफिस एट 10 AM, 10 बजे फादर ऑफिस जाते हैं। अब यहाँ पे सीधा जब आपको टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पे स्पेसिफाइंग टाइम, इसमें 10 o'clock समय दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो सीधा ये स्पेसिफाइंग टाइम पे जाएगा, ठीक है। ऑफन प्लेस, ये ऑफन प्ले है, ये है एक्शन है, तो इसमें एक्शन दे रखा है, ये सी, इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। और ये जो थर्ड वन है समटाइम्स, ये देखो आपको मैंने बताया कि इसमें समटाइम्स दिया है, ऑफन दिया है, ऑलवेज दिया है, नेवर, ये सारी चीज, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये हमेशा एक्शन में आएगा, तो इसका आंसर भी एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि पहले का आंसर क्या है एक्शन, और थर्ड का आंसर भी एक्शन। सेकेंड का आंसर लोकेशन, ये है टाइम में है, बाकी लोकेशन जो बी वाला है ये ऑप्शन है ही नहीं, ये ऑप्शन इसमें आएगा नहीं। डिस्क्राइब द पिक्चर इन अबाउट 10 सेंटेंसेस, 10 सेंटेंसेस में हमें करना है। सबसे पहले पिक्चर देख लेना अच्छे से, कुछ सिंपल सेंटेंसेस हम हर एक में लिखेंगे। जैसे दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ बर्थडे पार्टी, सिंपल पता चल रहा है बर्थडे पार्टी का पिक्चर, तो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ बर्थडे पार्टीज, राइट। देयर आर मैनी पीपल इन द पिक्चर, देयर इज़ अ बिग टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम, रूम के मिडल में बिग टेबल, द केक इज़ ऑन द टेबल, देयर आर कैंडल्स ऑन इट, द रूम इज़ डेकोरेटेड, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग इज़ गोइंग ऑन, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग चल रहा है, देयर आर स्वीट्स स्नैक्स on the table, children are eating and drinking, there is a man with camera in his neck, two women are serving cold drinks and snacks, there are many gifts on the table, all are happy, all are enjoying, music is going on. Thank you, bye bye.